السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: وہ کون ہے جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا؟ جواب: عمیر بن وہب مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادے کی وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ سوال: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام لکھا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام لکھا ہے۔ سوال: کون سا ملک ایسا ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہے؟ جواب: سعودی عرب میں۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: یوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الزلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جواب: سراقہ بن جاشم نے۔ سوال: کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟
जवाब जी नहीं। सवाल हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल आखिर किसने दिया था? जवाब हज़रत सऊदा बिनते ज़मा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया था। सवाल वो कौन से नबी हैं जिनके जनाजा के साथ 40,000 उलमा राहिबीन थे? जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल कितने बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है? जवाब 4 बादशाहों ने जिनमें 2 मुसलमान हैं, एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत जुल्करनैन और 2 काफिर हैं, बख्त नसर नमरूद बिन कनान। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने किसको नबूवत पर फाइज फरमाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को नबूवत पर फाइज फरमाया। सवाल अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? जवाब आखिरी पारा में। सवाल मक्का को अमन का शहर बना, ये दुआ किस पैगंबर ने की थी? जवाब मक्का को अमन का शहर बना, ये दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की नमाज जनाजा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने पढ़ाई थी। सवाल जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इसे किस नाम से याद किया जाता है? जवाब जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इसे मकाम इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। सवाल वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? जवाब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद भी बात की थी। सवाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किस शक्ल में आते थे? जवाब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आते थे। सवाल किस शख्स पर जहन्नम की आग और वो आग पर हराम है? जवाब नरम तबीयत और नरम मिजाज वाले पर जहन्नम की आग और वो आग पर हराम हैं। सवाल मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। सवाल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल उमर सानी का एजाज़ किस शख्सियत को मिला है? जवाब उमर सानी का एजाज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मिला है।
सवाल, काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब, काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल, ज़माना जहालियत में दिनों के नाम क्या क्या थे? जवाब, ज़माना जहालियत में हफ्ते को शबार, एतवार को अव्वल, पीर को अहोन, मंगल को जब्बार, बुध को दबार, जुमरात को मोनस और जुम्मे को अरूबा कहा करते थे। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? जवाब, आपका नाम सबसे ज़्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल, हज़रत सारा को हज़रत याकूब की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब, हज़रत सारा को हज़रत याकूब की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। सवाल, दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम क्या था? जवाब, दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम था। सवाल, कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया है? जवाब, 27 मरतबा कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल, क्या आप जानते हैं तितली की कितनी आँखें होती हैं? जवाब, तितली की आँखें 1200 होती हैं। सवाल, जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जवाब, हदीस मुबारका में है तुम लोग घास पर हाजत ना करो इसलिए कि ये जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। सवाल, किस अमल को मुर्दा लड़की को जिंदा करने के बराबर कहा जाता है? जवाब, मुसलमान भाई के ऐब छुपाने को मुर्दा लड़की को जिंदा करने के बराबर कहा जाता है। सवाल, कौन सी सब्जी कच्ची खाने से मौत वाक़ई हो सकती है? जवाब, माहिरीन के मुताबिक बंद गोभी और पालक को अगर ठीक से ना पकाया जाए तो टेप वर्म जिस्म में पहुंच सकते हैं। दरअसल टेप वर्म रिबन जैसे दिखने वाले कीड़े होते हैं और अगर किसी भी चीज़ को ठीक से ना पकाया जाए तो उस खाने में मौजूद कीड़े पेट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद खून के ज़रिए ये कीड़े जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच कर जिगर, आँखों और दिमाग को मुतासिर कर सकते हैं। और इन जानलेवा बीमारियों की वजह बनने वाला टेप वर्म दरअसल आता कहाँ से है? ठीक से ना पका हुआ गोश्त, पोर्क, मछली, गंदा पानी और वो सब्जियां जिन पर मट्टी लगी हो तो ये तमाम तर वजूहात टेप वर्म का बाइस बनती हैं। इसके अलावा कच्ची बंद गोभी अगर सलाद की सूरत में इस्तेमाल की जाए तो असाबी निज़ाम में बेहतरी लाने के साथ दीगर बीमारियों में बहुत मुफीद है। खुलासा कलाम यह है, अगर बंद गोभी और पालक को पकाकर खाना है तो सही से मुकम्मल तौर पर पकाइए वरना सलाद की सूरत में इस्तेमाल की जा सकती है। सवाल, ऐसी माजूरियाँ जिसमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है कितनी हैं? जवाब, ऐसी माजूरियाँ जिनमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है 10 हैं। सवाल, मन सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? जवाब, मन सलवा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया। सवाल, अल्लाह किससे ताल्लुक तोड़ता नहीं और किससे ताल्लुक जोड़ता नहीं? जवाब, अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह सखी से ताल्लुक नहीं तोड़ता और बखील से ताल्लुक जोड़ता नहीं। सवाल, दुनिया में मौजूद वो कौन सा पत्थर है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन कयामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा? जवाब, दुनिया में मौजूद वो पत्थर हजरे अस्वद है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन कयामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔